हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेट्रो डॉलर्स के बारे में कि पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है, पेट्रो डॉलर साइकिल क्या है, किस तरह से काम करती है और यूएस और वेनेजुएला में जो अभी चल रहा है, जो अभी हुआ रिसेंटली, व्हाट हैज़ हैपन बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला, हाउ पेट्रो डॉलर इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड इट, जो हमें दिख नहीं रहा है या दिखाया नहीं जा रहा है. We are told that there are multiple other reasons. We are told that uh, you know because Venezuela is not a democracy, that is why people were not happy, etc., etc. But a major reason behind this crisis, which is spreading across the world, is petrodollar system. The failing and the breaking down of the petrodollar system. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर रेलिवेंट for both your understanding and awareness plus your examination, both of them. तो क्वेश्चंस ये आता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या और कहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर क्वेश्चन आएगा कि पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कैसे काम करती है, ये पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग लूप क्या है, हाउ डज इट वर्क, यूएस को इससे क्या फ़ायदा मिलता है, एंड फाइनली हाउ इज़ दिस सिस्टम अंडर प्रेशर नाउ, व्हाट हैज़ हैपेंड स्पेसिफिकली in the past 3 4 5 years, probably that the system, the petrodollar system, is under stress. So in 1970s, what happened was the gold standard ended, which means that whatever US dollar was printed was not backed by gold anymore. It used to be backed by a certain amount of gold, a certain percentage of gold, but because gold limited है पूरी दुनिया में, you cannot have more than a certain quantity of gold. It takes a lot of time to mine gold. Therefore, ultimately, because the US needed more supply, because more the economies were expanding, उनको और ज़्यादा डॉलर प्रिंट करना है, बिकॉज पूरी दुनिया में डॉलर के थ्रू ट्रेड हो रहा था. So therefore, the US decided finally to break apart that system, to close that system, which was created in the Bretton Woods conference after World War II. वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सिस्टम क्रिएट किया गया था, विच वॉज कॉल्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड. इसको ख़त्म कर दिया गया. द आइडिया वॉज कि यूएस डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिंट कर सकें, बिकॉज वी नीड मोर डॉलर्स. अदरवाइज बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ डॉलर द इकोनॉमी इटसेल्फ विल फॉल अपार्ट, क्योंकि सप्लाई इतनी कम होगी तो इकोनॉमी डूब जाएगी. So the United States detached itself from the dollar from the gold. उसकी वजह से उसकी इंस्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में काफ़ी बढ़ गई, बिकॉज वैल्यू कम हो गई. अब आपने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया. नाउ द डॉलर एज अ पेपर इज नॉट कनेक्टेड विद गोल्ड एनी मोर. when it is not connected with gold anymore, the value of that paper might increase or decrease. It started falling down. So the US struck a deal with Saudi Arabia, and Saudi Arabia was the largest part or portion of OPEC at that time. Even now it is. तो यूएस और सऊदी अरेबिया ने 1974 में एक डील साइन करी. इट्स एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट वेयर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया एग्रीड कि जो सऊदी अरेबिया है वो सारा अपना ऑयल डॉलर में सेल करेगा. मतलब if India goes to Saudi Arabia and says, I want to buy a certain amount of oil from you, Saudi Arabia will say, okay, no problem, but I want dollars in return. मुझे आपका रुपी नहीं चाहिए, मुझे डॉलर ही चाहिए. In return, Saudi Arabia will get military protection and advanced, latest military hardware and technology from the US. Because Saudi Arabia did not have technology, they did not have scientists, they did not have that kind of a system. They had to have that also. So they found a partner which could ensure कि वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंश्योर करके रख सकें. So this was the deal and this worked well till 2024. 2024 में ये डील जब एक्सपायर हुई, it was not renewed by Saudi Arabia after that, which means now Saudi Arabia can sell to any country, oil to any country in currency other than dollar. When Saudi Arabia does it, other OPEC members will also start doing it, and they've already started doing it. So China now, if China or India goes to Saudi Arabia and say,
हमें ऑयल चाहिए, वो बोलेंगे हाँ ले लो। हम बोलेंगे हमारे पास डॉलर नहीं है, हम रुपी दे सकते हैं, वो बोलेंगे हाँ ठीक है रुपी में कर लो। So that system where dollar was being used as the default currency for clearance and settlement of oil trade, that started falling apart. अब आप बोलोगे ये सिस्टम ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, आप डॉलर में नहीं ट्रेड कर रहे, आपकी थोड़ी वैल्यू कम हो गई डॉलर की, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है। अभी आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा फ़र्क कैसे पड़ता है। हाउ डज इट इम्पैक्ट द एंटायर hegemony, importance, relevance of both US dollar as well as United States as a country. Okay? तो सऊदी अरेबिया ने क्योंकि ये डिसीजन लिया, तो और सारे देशों ने भी, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस थे, उन्होंने भी बोला हम भी यही करेंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंड देन। This system, which was created in 1974, created a petrodollar recycling loop. What is this petrodollar recycling loop, you might think? ये मेन रीज़न है behind the importance given by United States to this petrodollar system, क्योंकि ये रिसाइकलिंग लूप क्रिएट कर रहा है। क्या है ये, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऑयल इंपोर्टर्स हैं, स्टेप वन। जो भी ऑयल इंपोर्टर्स हैं वो डॉलर्स में ही इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट वाज द एग्रीमेंट। ओके, तो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री लाइक जापान ऑन और इंडिया must first have dollars, because if they don't have dollars, they can't buy this oil. Now we can't print dollars. So what we have to do is we have to somehow do some kind of trade with either United States or any other country, which means we have to export, because only if we export something can we get dollars, right? So we have to export to either US or any other country, and then we have to push टू गेट सेटलमेंट इन डॉलर। तो हम डॉलर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार हम एक्सपोर्ट करेंगे, उससे हमें डॉलर मिलेगा, उस डॉलर से हम लोग ऑयल खरीदेंगे। तो वी आर क्रिएटिंग डिमांड ऑफ डॉलर इन द मार्केट। हमने डिमांड क्रिएट करनी शुरू कर दी डॉलर की मार्केट के। अब हमने वट एवर डॉलर्स वी गेट बाई एक्सपोर्टिंग, वी यूज दैट डॉलर इन ऑर्डर टू बाय दैट ऑयल। When we buy that oil, we pay in dollars. When we pay in dollars, then this dollar goes to countries like Saudi Arabia. वहाँ पे आ जाता है स्टेप टू। स्टेप टू में जो भी ऑयल एक्सपोर्टर्स थे, दे हैव एक्यूमुलेटेड सरप्लस डॉलर्स। उनके पास बहुत सारा डॉलर आ गया, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस डॉलर। उनको है कि यार क्या करें हम इस डॉलर का। इस डॉलर को हम लोग किसी को दे देते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ ले लेते हैं। लेट्स गिव दिस डॉलर, either we can consume or we can buy assets. What assets do you buy? So what they do is they start investing in US bonds and US treasuries. So what is happening? When they're investing in US bonds and US treasuries, they are lending to the United States. अब यूएस का क्या फ़ायदा? आप बोलोगे यूएस का क्या फ़ायदा, उसको तो बोरो करना पड़ रहा है। नहीं, वो बोरो नहीं करना पड़ रहा है, वो बोरो करना चाहता है, बिकॉज दिस लेंडिंग इज़ वेरी चीप। 1% 2% पे उसको ये बोरोविंग्स मिल रही हैं। सबसे पहले तो उसने डॉलर की डिमांड क्रिएट की। उस डॉलर की डिमांड क्रिएट करने के बाद जो डॉलर लोगों ने कमाया, पीपल अर्न दैट डॉलर एंड कंज्यूम्ड something or the other by using that dollar. Now that dollar is coming back to the United States in the form of a loan, in the form of a borrowing, which is very cheap. सस्ते में उसको पैसा मिले। स्टेप थ्री जो मैंने आपको अभी बताया यही हुआ। To earn a return, these nations invest their surplus dollars by buying US assets like treasury bonds, stocks, and real estate. So, this money, this dollar, which was free to the US, comes back to the US. या तो वो यूएस में इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ गया, या फिर लेंडिंग के फॉर्म में वापस आ गया। आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ कि यूएस गवर्नमेंट को चीप फाइनेंसिंग मिली उसके बजट डेफिसिट के लिए। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर कंज्यूमिंग और स्पेंडिंग मोर देन यू आर अर्निंग। लेट्स से तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, बट तुम्हारे खर्चे हैं 2 लाख रुपए महीना।
हाउ विल यू सर्वाइव? यू विल एंड अप गेटिंग इन टू डेट, और थोड़े टाइम बाद ही, 4-5 महीने बाद ही तुम्हें लगेगा यार ये तो अनसस्टेनेबल है, ये तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा मैं ऐसे, बिकॉज योर spending is more than your earning. But the US can now survive with this budget deficit. How can it survive? Because it can keep printing money. उसने प्रिंट किया पैसा, मैंने 1 लाख रुपए प्रिंट कर लिया, यार मुझे ये काम करने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, कम काम करते हैं, 1 लाख रुपए प्रिंट कर लेते हैं, उससे ये लोन चुका देंगे। 1 लाख रुपए प्रिंट किया मैंने, डॉलर या रुपीज़ वट एवर, दैट डॉलर इज पम्प्ड इन टू द इंटरनेशनल सिस्टम, I consume and I pump that into the international system. And that dollar ultimately comes back to me in the form of a borrowing, an investment, whatever. So I create another security called as a bond. मैंने एक और piece of paper बना दिया, उसमें लिख दिया मैंने कि ये $100 का है ये बॉन्ड, ये मैं दे रहा हूँ सऊदी अरेबिया को, 50 साल बाद ये $100 में वापस दे दूंगा। और 50 साल बाद भी मैं जब $100 वापस दूंगा तो वो भी प्रिंट करके ही दूंगा। तो आई एम क्रिएटिंग अ वर्चुअस लूप, इट इज़ फॉर मी अ वर्चुअस लूप, क्योंकि मुझे आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई कैन कीप प्रिंटिंग मनी, एंड दैट प्रिंटिंग ऑफ मनी विल नॉट क्रिएट एनी इन्फ्लेशन। उससे मेरे डॉलर की वैल्यू कम ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज द वर्ल्ड इज डिमांडिंग डॉलर, द वर्ल्ड हैज़ टू डिमांड डॉलर, because oil is the dollar is the only currency in which we are trading oil. So because they will always be demand for dollar, the value of dollar will always stay stable. And that is how I can keep printing money. So it's a very cozy situation that the US created for itself by creating this petrodollar recycling. I hope it is clear. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, 2 बार देखोगे सेशन तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इस पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग लूप को क्रिएट करने के थ्रू या करने के बाद अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को एक बड़ा अच्छा एडवांटेज हुआ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले फाइनेंशियल लेवरेज मिला। फाइनेंशियल लेवरेज कहाँ से मिला? दैट बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन डॉलर, नाउ आई कैन यूज दैट डॉलर टू पुट sanctions or limitations on countries. Tomorrow I can say that Russia cannot buy oil or China cannot buy oil in dollars anymore. मैंने sanction लगा दिया because everything is happening dollar. It is in my control. I can easily control other countries and by putting sanctions on them. Sanction लगाने का मतलब अब settlement ही नहीं होगा. If China tomorrow wants to buy let's say 1 billion worth of oil from Saudi Arabia, US ने बोला हमने sanction लगाया, तुम ये नहीं कर सकते, because it is happening in dollar, and because it is happening in the US controlled international system, जिसकी बात शायद हम कर पाएँ, जो आपने सुना होगा SWIFT system, because it is happening through the SWIFT system, इसलिए सैंक्शन लगाना आसान है। ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज़। एक फाइनेंशियल लेवरेज मिलता है, उसको कंट्रोल क्रिएट करता है। ओके, द सेकेंड एडवांटेज इज अनमैच्ड इम्पोर्ट पावर, बिकॉज आई कैन प्रिंट whatever amount of currency and dollar I want to print. So I have unlimited importing power. I can keep importing. I don't have to worry. The more I import, the more I print. And all of that printed money goes out of my system. तो इन्फ्लेशन होता ही नहीं है, और मेरे डॉलर की डिमांड भी नहीं गिरती है, मेरे डॉलर की वैल्यू उतनी रहती है। ओके, सो द यूएस कैन easily print money to pay for energy imports, while other nations have to export something or the other. They have to basically earn their dollars, but US does not have to earn its dollars. It can easily print its dollars. So that is the major, and that is one major reason why US debt has gone so high. Because पिछले 50 सालों से यूएस आराम से यही करता आ रहा है, क्योंकि डेट बढ़ाने से उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, तो वो डेट बढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, बिकॉज एवरी कंट्री नीड्स ऑयल, दे मस्ट होल्ड यूएस डॉलर रिजर्व्स, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स प्राइमरी सेफ हेवन। एक और एडवांटेज हुआ कि वो गोल्ड की तरह सेफ हेवन बन गया। तो यूएस की एज अ नेशन देयर वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेज, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इज सो हाई कि अगर कुछ भी हो गया तो यूएस डॉलर तो हमारे पास है, तो सब कुछ सही है। दैट काइंड ऑफ सेफ हेवन इज बीइंग क्रिएटेड, वाज बीइंग क्रिएटेड थ्रू यूएस डॉलर, बिकॉज एवरी ट्रेड वाज हैपनिंग इन यूएस।
तो ये 3 मेजर एडवांटेजेस अमेरिका को हुए हैं बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग लूप। अब ये सिस्टम प्रेशर में कैसे है, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को अभी आंसर करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि ये सिस्टम प्रेशर में कैसे है। ओके, सेवरल फैक्टर्स हैव बिगन टू चैलेंज द पेट्रो डॉलर सिस्टम्स डोमिनेंस। कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, they started asking these oil producing countries which also includes Venezuela कि आप हमें ऑयल दो, हम आपको डॉलर नहीं देंगे, हम आपको रुपीस देंगे, या हम आपको कोई और करेंसी देंगे जो भी आपको चाहिए। जैसे कि एक इन्होंने पेट्रो करेंसी बनानी शुरू करी विच इज़ बेसिकली अ बिटकॉइन टाइप ऑफ करेंसी विच वॉज क्रिएटेड बाय वेनेजुएला, जिससे कि वो दे कैन बाईपास ट्रेडिंग इन यूएस डॉलर। तो इंडिया ने बोला आप हमें क्रूड दो, हम आपको पेट्रो करेंसी में पे कर देंगे, या फिर हम आपको रुपी में पे कर देंगे, आप उसको पेट्रो करेंसी में चेंज करा लेना या युआन में चेंज करा लेना। दैट इज़ पॉसिबल। व्हाट इज़ हैपनिंग? यू आर saying to the bully, saying to the leader of the house that we don't need you anymore. We can trade within ourselves, between ourselves in another currency also. So ultimately, we are reducing the demand of dollar. जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू भी कम होगी। जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तो दो चीज़ें होंगी। नंबर वन, जो उसका एग्जिस्टिंग डेट है उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, मतलब वो और महंगा होता चला जाएगा। एंड दे विल नॉट बी एबल टू रेज मोर डेट बिकॉज द डेट विल बिकम, रेजिंग मोर डेट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। अब मेरी वैल्यू मार्केट में कम है, मैं कल को लोन लेने जाऊंगा, लोग बोलेंगे दे तो देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा रेट पे देंगे, बिकॉज हमें नहीं पता तुमसे वापस मिलेगा कि नहीं। Because your value in the market is less, so people are not willing to give you money. So ultimately, it's a factor of demand and value of dollar. But if countries decide, like India and China, that we are going to trade in any other currency other than dollar, then automatically the demand and value of dollar starts going. And because in 2024, the agreement between Saudi Arabia and United States could not be revived, Saudi Arabia said, we don't want to renew this contract. There are multiple other reasons behind that, but ultimately they decided not to renew the contract. So not only Saudi Arabia but other OPEC countries will also start following it and saying कि हमें डॉलर में सेटलमेंट नहीं चाहिए, किसी और करेंसी में सेटलमेंट आप कर दीजिए, चलेगा, ये सब चलेगा। द सेकेंड चैलेंज वॉज ब्रिक्स ब्लॉक। तो द ब्रिक्स ब्लॉक इज एक्सपैंडिंग एंड अभी डिसाइड होने वाला था कि वेनेजुएला विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। और ब्रिक्स ब्लॉक वॉज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन सेंट्रलाइज्ड करेंसी। वो अपनी एक करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो अपनी करेंसी बना लेते तो फिर वो बोलते हम जितने भी देश हैं, ब्रिक्स ब्लॉक के देश हैं, ये सब उस एक करेंसी से ट्रेड करेंगे, उस एक करेंसी से सेटलमेंट करेंगे। ऑटोमेटिकली द वैल्यू एंड द डिमांड ऑफ डॉलर वुड हैव गॉन डाउन फर्दर। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि US actions like freezing Russian assets have pushed some nations to seek alternative to avoid the risk of sanctions. सबसे तीसरा चैलेंज ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर में द नेशन सॉ दैट द US कैन arm twist any currency just by using sanctions. Therefore, they are basically trying to bypass the system, create their own system so that they're not dependent on US dollar anymore. Okay. So this is what has happened so far. First of all, I told you कि ये पेट्रो डॉलर सिस्टम कहाँ से इमिनेट हुआ, then how this petrodollar recycling loop or this petrodollar system works, number 2. Number 3, इससे एडवांटेज क्या है यूनाइटेड स्टेट्स को, सबसे बड़ा एडवांटेज इससे क्या मिलता है। एंड नंबर 4, व्हाई इट इज दिस सिस्टम अंडर प्रेशर नाउ। ये सिस्टम अभी प्रेशर में क्यों आया है? बिकॉज नेशंस हैव स्टार्टेड टू डिफाई दिस सिस्टम बाय सेइंग कि हम अपनी एक करेंसी बनाएंगे, उससे ट्रेड करेंगे। अब वेनेजुएला का रोल कहाँ से आया है इसमें? व्हाई स्पेसिफिकली वेनेजुएला बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर इशू? वेनेजुएला का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आया, जो मैंने दूसरा ये इन्फोग्राफ बनाया है यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैंने चैलेंज बताया नॉन डॉलर सेटलमेंट
of oil transactions, that is the biggest challenge that US is facing right now, जिससे कि US डॉलर की डिमांड जो है वो बहुत कम हो सकती है. And because Venezuela, number one, has very large oil reserves, and also because China and Venezuela had already started, although in small quantity, they had already started trading between themselves in yuan and in other currency, cryptocurrency, yuan, and by using China's system of settlement. अभी तक स्विफ्ट सिस्टम फॉलो होता था. China created its own system. That is why India is also trying to expand its own system, UPI, internationally, because this allows countries to settle in rupees. China created a similar system called as SIPS, जहाँ पे अगर चाइना और वेनेजुएला ट्रेड कर रहे हैं, चाइना ने कुछ खरीदा वेनेजुएला से, तो सेटलमेंट डायरेक्टली सिप्स सिस्टम के थ्रू हो सकती है. आपको ये वाला बैंकिंग सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. चाइनीज़ बैंक and Venezuelan bank can trade between themselves by using this system or infrastructure called as SIPS. ये एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है बैंक्स को एक दूसरे को पैसे भेजने के लिए. ओके, तो ये अभी तक हमने देख लिया. और वेनेजुएला यहीं से कनेक्ट होता है बिकॉज इट हैज़ हाई रिजर्व्स, एंड वेनेजुएला एंड चाइना हैड ऑलरेडी स्टार्टेड trading in their own currency. So the US realized that if this expands, if Venezuela, एक तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, तो आज नहीं तो 20 साल बाद ये सब रिजर्व्स निकल के आएंगे. अल्टीमेटली यूएस विल लूज इट्स हेजेमनी और इट्स कमांड विच वाज क्रिएटेड थ्रू यूएस डॉलर. तो अगर हम ये कंट्रोल कर लें पूरा 303 बिलियन बैरल्स का जो रिजर्व्स है इसको कंट्रोल कर लें, then automatically we are breaking down that system which was now getting created, and we are also sending across a message कि और कोई देश भी ऐसा नहीं कर सकता है. दैट इज़ वाई ईरान इज़ ऑल्सो अंडर स्ट्रेस बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन ऑयल एक्सपोर्टर. अगर वो भी चाइना के साथ, रशिया के साथ, इंडिया के साथ रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, US does not want that because it reduces the value and demand of dollar. That is why Iran is also under stress at the moment. Okay. What is petrodollar recycling? ये हमने देख लिया था. ऑयल नेशंस इन्वेस्ट सरप्लस रेवेन्यू बैक इनटू यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड एसेट्स, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स को चीप मनी मिलता रहता है. चीप, उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग मिलती रहती है. ओके. अंडर मोडुरो रीडायरेक्टेड द ऑयल वेल्थ टू सर्विस लोन्स फ्रॉम चाइना एंड रशिया. तो वेनेजुएला ने धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किया कि हम ना केवल, not only are we going to trade with China and Russia in their own currency, but whatever money we earn, we're also going to lend this money to China and Russia back. तो होगा क्या? China and Russia will also start getting cheap money, cheap borrowings. They can expand using these cheap borrowings. तो उनको वो फाइनेंशियल लेवरेज उनका और बढ़ता जाता है, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी करेंसी से ट्रेड किया, दूसरा वही करेंसी उनके पास वापस भी आ गई इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग. नाउ दे कैन यूज दैट करेंसी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर सिस्टम, और उससे कोई इन्फ्लेशन भी नहीं हुआ इकोनॉमी. ओके, सो दिस वाज द मेजर थ्रेट दैट वाज emanating from Venezuela, and that is expected to emanate from Iran as well. That is why United States decided to penetrate or to go into Venezuela militarily. Okay. अब बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस भी बोलते हैं कि भाई there is a certain special kind of crude that is created by Venezuela that is required by some refineries in the United States. उसको वो चाहिए, इसलिए they are trying to arm twist Venezuela into providing that. But those are smaller reasons. The major reasons that it happened in Venezuela is twofold. Number one, they're trying to capture and control the oil supply of Venezuela because that oil supply is helping in creation of another US dollar kind of recycling loop with China, with Russia, with India. And secondly, they're also sending a warning to BRICS कि आप अपना ब्लॉक बना के अपनी करेंसी नहीं बना पाओगे, हम नहीं बनाएंगे. So ultimately it's a fight of having a centralized
currency which is also called as de-dollarization. इसकी फाइट है कि हम de-dollarization नहीं करने देंगे, and other nations are saying कि हम करेंगे because you have been misusing this dollarization for the past 50, 60 years. We have been suffering. Now we are big enough. We can challenge you. That is the major fight between these currencies. I hope now the entire dollarization, petrodollar, and also the petrodollar recycling loop is very clear to all of you. कोई डाउट है तो नीचे पूछ सकते हो. आई विल ट्राई एंड आंसर एज मेनी क्वेरीज एज पॉसिबल. आई एम वेरी श्योर इट वॉज fun learning from this. If you have any feedback, anything to say, you can put it down in the comment section below. I will see you very soon with more such sessions which try and break down and simplify these complex looking finance and economic topics. And I'm very sure you're going to keep enjoying learning this from me. All the best. Bye bye.